بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کے غیر اسلامی غیر منصفانہ رویے پر۔ غیر اسلامی اسی نہج سے کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رویہ منصفانہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو غیر اسلامی کہتا ہوں۔ ہر بندے کو حق حاصل ہے، وہ کسی کو فیور کرے، جس کی چاہے وہ فیور کرے۔ جو ان کے پیروکار ہیں، فالوور ہیں، ان کو بھی حق حاصل ہے، وہ اپنے لیڈر کی جو بھی تعریف کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں۔ باقی لوگوں کو بھی اپنے طور پر سب کو ہی حق حاصل ہے، نون لیگ کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی، باقی بھی فضل الرحمان صاحب، جو بھی جماعت، جو بھی اسلامی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی کہلاتی ہیں، یہ تو ہے ہی اسلامی جماعت، جماعت اسلامی جماعت، نام ہی ان کا یہ ہے۔ تو پھر مجھے کیا گلا یا اعتراض یا کوئی ایسی بات نہیں، صرف افسوس ہے، مجھے افسوس کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے، بس دکھ ہے ان کے رویے پر۔ ان کے کون سے رویے پر؟ یہی جو غیر منصفانہ، جسے میں کہتا ہوں۔ غیر منصفانہ میں کیوں کہتا ہوں؟ انجسٹس بیہیویئر ان کا۔ میں آپ کے سامنے پہلے قرآن کی آیت رکھ دوں تاکہ تقابلی جائزہ ہم لے لیں۔ یہ سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیت ہے۔ یہ آیت ہم مسلمان ہیں، سب پر منطبق ہوتی ہے، ہر مسلمان پر ہوتی ہے، ہر مسلمان پر ہوتی ہے۔ میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی دعوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو، جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ مائدہ کی 8 نمبر آیت کا مفہوم ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر مسلمان پر یہ لاگو ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ انسان کے اندر بھی ایک عدالت لگی ہوتی ہے، کسی چیز کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے دونوں طرف کے آرگیو خود ہی کرتا ہے، اس کے اندر خود ہی کشمکش ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، اندر ہی اس کے دونوں وکیل ہوتے ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کی طرف جانا ہے۔ تو یہ آیت، ویسے میں اگر عام طور پر کہوں تو کوئی نہیں، یہ نون لیگ پر اتنی منطبق نہیں ہوتی، پیپلز پارٹی پر نہیں ہوتی، تحریک انصاف پر بالکل ہوتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف عدل و انصاف کی ہی بات کرتی ہے، ان کا یہی ایجنڈا ہے، اسی پر ہی وہ زیادہ آگے بڑھے ہیں، یا ان کا نعرہ ہے۔ باقی مذہبی جماعتوں پر لامحالہ یہ پوری اترتی ہے، اور خاص کر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کی۔ میں نے جو کچھ دیکھا یا آبزرو کیا، جماعت اسلامی کے دوست، میرے پرانے دوست ہیں، اب بھی ہیں، چلے آ رہے ہیں، کوئی اس طرح زیادہ نہیں بات ہوتی تھی، تھوڑی بہت ہوتی رہی ہے۔ میں لائک کرتا تھا، مطلب یہ، یا کم از کم اتنا نہیں کہتا تھا، برا نہیں کہتا تھا ان لوگوں کو۔ اب میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی اچھے یا پازیٹیو خیالات نہیں رہے۔ میں نے کوئی نہیں، میں بس نیٹ پر ہی دیکھتا ہوں، ان لوگوں کے جو کمنٹس آتے ہیں، جو ان لوگوں کی لائکس آتے ہیں، یا جو یہ باتیں کرتے ہیں، انہیں سے ہی اندازہ لگایا۔ غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ میری بات ہی درست ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں، ان کا ٹینٹ کہتے ہیں، جس کے رجحان ان کا جھکاؤ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف ہے، کہ دونوں اکٹھے ہیں، اور ساتھ ہی تیسری قوت جو ہے اصل اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی ساتھ ہے۔ ان کا جھکاؤ ادھر ہے زیادہ، یہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، اور اسی بات پر ہی مجھے، اگر میرے جذبات جو ہوئے ہیں، نیگیٹو ہوئے ہیں ان کے بارے میں، اب میں دو ٹوک کہتا ہوں، مجھے یہ اچھے نہیں لگتے، تو اس وجہ سے
ये मैं इस पर मुझे बड़ी हैरानगी है कि इनका रवैया नून लीग की तरफ। अच्छा, ये बातें तो सभी के खिलाफ ही करते हैं, धरने भी देते हैं, हर हुकूमत के खिलाफ करते हैं। हुकूमत इस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट की है, उसके खिलाफ ये धरने देते हैं, सब कुछ ही होता है। इस आयत को आप सामने रखें तो ये मैं जो कहना चाहता हूं कि जिस तरह ये इमरान खान की मुखालफत करते हैं, जिस तरह ये पीटीआई की मुखालफत करते हैं, इस तरह नहीं करते, मुखालफत नहीं करते। अगर ये न्यूट्रल हो तो उनको चाहिए कि जिस तरह ये इमरान खान को फरिश्ता नहीं है, उसकी जिंदगी सबके सामने है, वो खुद भी कहता है कि मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। खामियां हर एक में होती हैं, तौबा का दरवाजा खुला है। हम सभी कहते हैं कि तौबा करके अगर कोई तायब होकर आ जाए तो फिर बंदे को उनके पुराने ताने नहीं देने चाहिए कि तू तो ये करता रहा है, ये वो करता रहा है। मैं तो समझता हूँ दीन का यही तकाजा है। बाकी आप लोगों की मर्जी है कि जिस तरह ये रवैया इमरान खान के बारे में इनका है, ये मैं असल कंपैरिजन ये है कि उस तरह का नहीं इनका, ना उस तरह के लफाज इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के मतलब पीटीआई के जो फॉलोअर हैं उनको ये यूथिया ये कहते हैं, मैंने पढ़ा है एक जगह पे नेट पर ही, लेकिन ये उनको पटवारी नहीं कहते, नून लीग को या दूसरे जो हैं पीपल्स पार्टी के दूसरे, ऐसा मतलब इनका नहीं है अल्फाज का चुनाव, ऐसा नहीं। जिस तरह की ये नफरत का इजहार ये इमरान खान के साथ करते हैं, मैं यही कहता हूं कि अगर अगर ये कहते हैं कि हम तो सबको बराबर रखते हैं, तो ये अदल के करीब नहीं, इंसाफ के करीब बात नहीं ये करते, ये गलत बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं, इंसाफ नहीं करते। मैं यही मेरा मौजू है, ये इंसाफ नहीं करते। अगर आप उनके साथ हैं तब खुल के बात करें, खैर करते भी हैं, हक है आप लोगों को करें। तो बस इस पर अफसोस है कि आप उनके साथ हैं, इस पर मुझे दुख है। उनके अमीर हैं हाफिज नईम और रहमान साहब, अच्छे बंदे हैं, कराची से आए हैं इन्होंने। अब देखिए यही इंसाफ की बात आप जरा देखना, यहाँ मैं अर्ज जो करना चाहता हूँ, ये जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी का 2024 में, ये कोई मुनसिफाना नहीं हुआ। हर बंदा कहता है किस तरह की धांधली हुई, ये अब तक के इलेक्शन नहीं मुनसिफाना हुए, लेकिन जिस लेवल पर इसमें हुआ जो कुछ, वो पहले कभी नहीं हुआ। उसकी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं रवैया बताना चाहता हूँ जमात इस्लामी का कि ये किस तरह उस पर तनकीद करते हैं। कितनी सुनी है आपने तनकीद 8 फरवरी के इलेक्शन पर। गो हाफिज नईम और रहमान साहब ने उसको, जो उनको सीट दी जा रही थी 47 जैली फॉर्म 47 पर, वो उन्होंने नहीं ली। अच्छा किया नहीं ली, उसमें दोनों का फायदा, एक तो इनका अपना हाफिज नईम और रहमान साहब की अपनी ज़ात का फायदा, क्रेडिबिलिटी इनकी कायम रही, और जमात का भी फायदा। कुछ जमात ने ऐसा नहीं किया, अच्छा किया, वाजे पब्लिकली उन्होंने बयान दिया कि ये सीट पीटीआई की बनती थी। फिर आप देखेंगे इतनी बड़ी धांधली, आप इलेक्शन लड़ते हैं, करते हैं सारा कुछ, इस इलेक्शन में इतनी बड़ी हुई, तो आप क्या स्ट्रगल उसके खिलाफ कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं कर रहे। फिर आप देखिए ये इस्लामाबाद वाली 3 नशिस्तें, इनमें भी इन्होंने अवामी सतह पर पब्लिकली कहा है कि ये पीटीआई की नशिस्तें हैं वो जीती है, इनके जो इनके पास फॉर्म 45 है। इसमें सबसे ज्यादा यही मसला हुआ ना, फॉर्म 45 के तहत हर पोलिंग स्टेशन से जो फॉर्म मिलता है उसके तहत पीटीआई जीती है। और आगे जो 47 है वो जो भी था, वो डीसी होता है जो भी होता है पर रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने बना के दे दिया 47 ने, ये फलां बंदा जीत गया है। अंदाजा लगा लें आप, ये कितनी बड़ी गैर मुनसफी आप कहें, जुल्म कहें, इसके खिलाफ इनकी जद्दोजहद कितनी है। ये कुरान की आयत आपने याद रखनी है, सूरत माइदा की 8 नंबर, अदल करो। अदल करना बताओ ना फिर लोगों को किस तरह हुआ। अच्छा, सिर्फ इतनी बात ही नहीं
कि वो इलेक्शन में आपने कहा, लेकिन जब आपको गवाही देने की जरूरत पड़ी अदालत में, फिर आपने गवाही नहीं दी। आपने वो फॉर्म 45 जो थे आपके पास, आपने जमा नहीं करवाए। उसका फायदा पहुंचना था, या जो भी है वो पीटीआई को पहुंचना था उसका फायदा, लेकिन आपने नहीं करवाए। वो तो मलऊन काजी फायद ईसा ने हरामजदगी की, जिसकी वजह से वो सारा इलेक्शन ही रिग था। उसने अब भी वो ना ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, वो मामला दरमियान में रह गया। अगर तुम लोग जमा पीटीआई जो जमात इस्लामी जमा करवा भी देती तो फिर भी यही रिजल्ट निकलना था जो अब रिजल्ट निकला। लेकिन अब देखिए, मेरे जैसे बंदे को मौका तो मिल गया ना बात करने का, तुम्हारी अनजस्टिसी को सामने लाने का, गैर मुनसफी जो है, जो हमारा गैर मुनसफाना रवैया है उसको, कि तुमने गवाही नहीं दी। जब कहा जाता है गवाही दो, गवाही को मत छुपाओ, ये देखिए नून लीग पीपल्स पार्टी को ऐसी बात नहीं की जा सकती, जमात इस्लामी से की जा सकती है, इस्लामी जमात है कि कहा गवाही दो। तो फिर ये तो नहीं कहा जाता कि ये यहूदी के खिलाफ गवाही देनी है, हिंदू के खिलाफ देनी है, किसके खिलाफ देनी है। जो भी सच्ची गवाही है वो आप पर फर्ज है, आपने देनी है, आपने नहीं दी। आपने वो फॉर्म नहीं जमा करवा, आपने जो हल्के के 45 के फॉर्म थे वो नहीं जमा करवाए। खैर, मैं यही बात ही करना चाहता हूं कि इनका गैर मुनसफाना रवैया, इतने बड़े लेवल पर ये गैर मुनसफाना इलेक्शन हुआ, तो ये लोग क्या कर रहे हैं। अब वो देखें, अब वो काबजीन है एक तरह से, जो लोग हुकूमत पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो तो सही तरीके से इलेक्ट होकर आए ही नहीं। उनको जेली फॉर्म 47 देकर उनको बैठा दिया गया। क्या स्ट्रगल कर रहे हैं उनके खिलाफ। अच्छा, उन लोगों की वजह से जो मसाइल खड़े होते हैं मुल्क में, उनके पीछे भागते हैं जी, उनका करते हैं। बिजली महंगी हो गई, महंगाई हो गई, उनके खिलाफ धरने देते हैं। क्या कहेंगे आप इसे। मेरे भाइयों, ये प्रॉब्लम है, जो इस वजह से जो असल है बोन ऑफ कंटेंशन, जो बुराई की असल जड़ है, उस पर कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। ये मेरा तो अब यकीन पुख्ता हो गया कि ये एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर खेलते हैं, उन्हीं के मुताबिक इन्होंने चलना होता है। और चूंकि तहरीक इंसाफ मार खा रही है और उनकी सारी जिद्दोजहद इस काबजीन के खिलाफ है, तो काबजीन जो हैं वो जिस रंग में भी हैं, उनकी कोशिश है कि किसी तरह से इनको पीछे हटाया जाए, इन इन लोगों की तवज्जो इनसे हटाई जाए। लोग इनके साथ क्यों हैं, तो तवज्जो हटाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए जमात इस्लामी भी इस्तेमाल हो रही है। और तो मैं तुझे कहता हूँ तवज्जो हटाओ, ये है तवज्जो हटाओ, मेरा मौक़िफ़, ये जमात का काम तवज्जो हटाओ। यही काम इन बैक वाले करते हैं, वो भी अपनी सतह पर, उनका भी यही काम है, तवज्जो हटाओ किसी मसले से। अगर तवज्जो हटानी है तो वो भी कोई मसला लेकर खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाते हैं, धरने देते हैं, जुलूस निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। जो मसला होता है असल, जो काबजीन के खिलाफ जा रहा होता है, वो मसला पीछे चला जाता है, बस पूछ चला जाता है। ये काम करते हैं। मैं इस बना पर मेरा मतलब या दिल दुखा हुआ है, या इनके बारे में मेरे नेगेटिव जो जज्बात ज्यादा हो गए हैं, नफरत की हद तक जो हुए हैं, उसकी वजह मैं ये बताता हूं कि इनका गैर मुनसफाना रवैया। अब एस्टेब्लिशमेंट की बात आप देख लें, ये भी बड़ी अजीब बात है। खैर, जिन्होंने मुखालफत करनी होती है करनी होती है। इमरान खान का 3.5 साल दौर इक़्तिदार का, उसमें पहले एस्टेब्लिशमेंट की बात ले लेते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा, क्या करता, वजीर आजम था, तो उसने यही कहना था हम एक पेज पर हैं। मगर अगर दूसरा कोई बंदा को धोखा देने पर आ जाए, कोई नौसरबाजी करने पे आ जाए, तो बंदा क्या कर सकता है। देखिए, बाजवा ने इसमें बिल्कुल धोखा दिया उसको, इमरान खान को, आपके सामने है, आपको पता चल रहा है बिल्कुल। फिर भी आप, जमात इस्लामी की मैं बात करता हूँ, फिर भी आप डटे हुए हैं। वो भी बूट चाटता रहा या कर ऐसे गोन, मैं लफ्ज ऐसे शायद इनके नहीं, लेकिन अंदाज यही होता है कि ये भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा, वो इस्टेब्लिशमेंट ही इसे लेकर आई।
बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट इसे लेकर आई क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी थी, क्योंकि उस वक्त के जितने भी सर्वे हुए थे बैन अवी जो फॉरनर उन्होंने किए, ये पाकिस्तान में जितने भी हुए सब ये कह रहे थे 2018 में धांधली भी हुई कि ये पीटीआई जीतेगी, पीटीआई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी, तमाम सर्वे ये बताते थे। धांधली तो इमरान खान के खिलाफ हुई, मैं तुझे मेरी जमात है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये नजर भी आता है कि वाजपेयी ने नहीं चाहा, एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं चाहा कि ये 2/3 अक्सरियत के साथ इतनी मजबूत होकर आ जाए कि हमारे हाथ से निकल जाए। उसकी सीटें कम की गई, 20, 25, 30 कहते हैं, उस कम सीटें करके जो बैसाखियां हैं उनके जरिए उसकी हुकूमत बना दी गई। ये काम किया एस्टेब्लिशमेंट ने जी, बिल्कुल लिया बना लिया। फिर जो कहते रहे वो उसने उस हद तक नहीं माना उनकी बात। ये इख्तलाफ है, शुरू दिन से ये इख्तलाफ चले आ रहे थे, कोई नए नहीं थे। बुजदार नहीं अच्छा था, मैं भी कहता हूँ, हम भी उस वक्त कहते थे, अब भी कहते हैं, वो इतना काबिल बंदा नहीं था, लेकिन सियासत के बहुत सारे मामलात होते हैं। क्या करता इमरान खान और किसको बनाता, दड़े बंदियां हैं बहुत सारियां। पहली दफा वो आया था तो उसने उसको बनाया, किसी को क्या त्रास को मामा लगता है उसको, सिर्फ यही कहने पर कि हाँ उसने ठीक नहीं बनाया, वो हम भी कह रहे हैं, लेकिन कि इस बना पर उसकी हुकूमत को खत्म कर देना कि इसने ये बंदा हमारे कहने पर इसको हटाया नहीं जा रहा, तुम मामे लगते हो। अगर उसकी कारकर्दगी नहीं ठीक हो गई इंदा इलेक्शन में, इलेक्शनों का फायदा क्या है, यही छाननी है। आप वो छान कर बंदे जाते रहेंगे। अगर इसकी हुकूमत ना गिराई जाती तो शायद ये इतना पॉपुलर ना होता इमरान खान, जितनी अब उसकी हुकूमत गिरा के इन्होंने जो कुछ किया है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें मतलब इसने अगर नौसरबाजी की है, वाजपेयी ने धोखा दिया उसको, अब फिर कहेंगे कि मैं बात कहाँ ठाकर ले गया, लेकिन क्या करूं, मजबूरी होती है, हमने उधर से ही मसाले लेनी होती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुद धोखा हुआ, 2 दफा हुआ। आपके कीमती साहबी आपने भेजे तरबियत तबलीग के लिए उन लोगों के साथ जिन्होंने कहा था हमारे साथ भेज दें, वहां उन्होंने उनको कैद कर लिया, कत्ल का शहीद कर दिया। हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आप जानते हैं, मक्का वालों को दे दिया उन्होंने, किस तरह उनको शहीद किया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ अगर कोई धोखा देने पर आ जाए, और पहला उसका तजर्बा था, और फिर अब वो कह रहा है कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी ऐसी, उसको गलती का इतराफ वो कर रहा है खुद इमरान खान, हमें ऐसी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। तो फिर लेकिन आप लठ लेकर उसके पीछे पड़े हुए हैं और तोपों का रुख सारा उसकी तरफ है, और आपकी सारी सियासत जो है उसको नुकसान देती है, दूसरों को फायदा देती, जो काबजीन है उनको फायदा देती। मैंने एक पोस्ट देखी इन्हीं साहब की, जमात इस्लामी के एक साहब की, फरिश्त दी हुई थी उन्होंने काफी लंबी सारी, जो इंतखाबी नारे थे इमरान खान के, जो चीजें थी, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहा था, ये कहा था, ये कहाँ है। कभी तुम लोगों ने नून लीग के इस तरह याद करवाए उनको नारे, कभी आपने पीपल्स पार्टी के इस तरह नुक्ते बयान किए कि तुम ये कहते थे तो आज तुम क्या कहते हो। एस्टेब्लिशमेंट को कभी तुमने कोसा, कहा कि तुम्हारा क्या काम है सियासत में, तुम इधर सियासत में क्यों पंगा लेते हो और ये इलेक्शनों को रिग करते हो, कभी कहा हो? नहीं, कभी नहीं कहा। सारे का सारा जोर इमरान खान पर, उस बेचारे पर, जेल में पड़ा है वो, जेल में अब पड़ा है, फिर भी बाज नहीं आते। अब देखिए उसका 3.5 साल का दौर, जिस पर मैं दीदी खुसूसी बात मैं करना चाहता हूँ। उसके जो वादे थे, एक तो मैं कहूँ ठीक है, जो वादे एक इंतखाबी वादे होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, हर जमात करती है। आप बहुत नेक हैं जमात इस्लामी वाले, बहुत मुत्तकी परहेजगार हैं, आप नहीं करते होंगे, लेकिन अक्सर जमातें वो टारगेट बड़े बड़े रखती है सामने लोगों के कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, मगर उनमें से अगर 50% भी अचीव हो जाएं तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है, अगर वैसा बंदा को कर ले। अब जी इसके टारगेट तुम्हारे सामने जी ये नहीं किया, जिसका मैंने पढ़ा उसने लिखा था कि मैं यूथिया नहीं हूं कि जो मैं ऐसी बात को मान लूं। यूथी ऐसे नहीं मानते, कौम इतनी पागल नहीं है कि जो ऐसे ही उसके पीछे पड़ गई है, जो अपने कारोबार भी तबाह करवा रही है,
अपने घर भी उनको ढाए जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा, अपनी इज्जत उनकी इज्जतों पर हाथ डाले जा रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दस को बमाल किया, सब कुछ पता है आपको, आपने मजम्मत कभी नहीं की इस चीज की, आपने ये भी आपका गैर मुनसिफाना रवैया है कि आपको नजर नहीं आता कि क्या क्या हो रहा है इसमें। बात है 3.5 साल दौर की, 3.5 साल दौर में 2 साल कोरोना रहा, आपको पता है पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया बंद हो गई थी, चाइना बंद हो गया, हर चीज बंद हो गई, मईशत बैठ गई, कई मुल्क तबाह हो गए, इसने उसमें भी कामयाबी से उसको टैकल किया। दुनिया मानती है जो टॉप के 3 ममालिक जिन्होंने कोरोना के साथ बेहतरीन जिन्होंने ट्रीट किया, उनमें से एक पाकिस्तान भी था, ये इमरान खान का काम था। आप देख लें 3.5 क्या करता वो, 3.5 साल दौर में 2 साल कोरोना के निकल गए। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर भाजपा की मुनाफिकत आपके सामने है कि उसने चलने ही नहीं दिया, धोखा दिया इसको, वाजिब धोखा दिया, आपको सब पता है। यूक्रेन भेज दिया, रूस भेज दिया, पीछे से किस तरह के बयान दिए, उधर से अमेरिका को क्या कहा आपके सामने। फिर जितनी मशीनरी है सारी नून लीग और पीपल्स पार्टी की, हुकूमती मशीनरी एसी डीसी किन्होंने काम करने होते हैं, सारा इमरान खान ने तो नहीं करने थे। नीचे जो मशीनरी है उसमें से अक्सरियत जो थी जो है उस वक्त बल्कि बिल्कुल 100% थी, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की थी मशीनरी सारी। क्या करता, नहीं चलने दिया गया उसको चलने, फिर क्या करता, एक तो वो हुकूमत छोड़ देता, अगर फैसला ऐसा करना, ऐसा इतना आसान होता है करना तो कर लेते, लेकिन उसने ये तो कहा है कि ये मतलब मैं हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी हुकूमत, तो फिर और क्या करता वो, अपने ताई उसने पूरी कोशिश की। उसके बारे में सभी उसके दोस्त भी कहते हैं, दुश्मन भी कहते हैं कि वो मर्दम शनास नहीं है, बंदों का उसको नहीं पता चलता, जो बंदा उसके सामने जो बोलता है वो उसी को सच समझता है। और क्या किया जब बंदा कोई दिलों के भेद तो नहीं जानता, नहीं पता चला उसको बाजवे का, उस उसने धोखा खा लिया सारे। ये तो 2019 में ही उसको फारग करने वाले थे, मेरा आ गया था उसका शहबाज शरीफ कबीना उसकी आ गई थी, बनानी शुरू हो गई थी। तो मेरे भाइयों मैं यही बात करना चाहता हूँ, इस बात ज्यादा लंबी हो गई कि उसका कितना दौर है और उसके सामने रुकावटें कितनी थी, वो क्या पूरा करता, अपने ताई उसने पूरी कोशिश की। तो बस मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ आपके सामने कि ये जमात इस्लामी का जो है ना, इस पर मुझे दुख है, इन पर मुझे तकलीफ है, मेरे दिल को इनके बारे में मेरे जज्बात ज्यादा मनफी हुए। एक भाई से मुंह मारी भी हुई मेरी फेसबुक पर, ऐसे बूढ़ा बंदा हूँ, ब्लड प्रेशर बाज दफा ऊपर नीचे बंदे का, थका हुआ आया। खैर उनकी भी मेहरबानी, उन्होंने भी दोबारा कोई बात नहीं ऐसी की, ठीक है, राब्ता भी हमारा रहा, राब्ता मुनक़ता भी नहीं हुआ। बहरहाल ये इस पर मुझे अफसोस है जमात इस्लामी के गैर मुनसिफाना रवैये पर, अनजस्टिस बिहेवियर पर, कि इनका सारे का सारा जो टारगेट है वो इमरान खान और पीटीआई है। इसकी सारी सियासत का नुकसान इमरान खान और पीटीआई को ही नुकसान पहुंचाना होता है, काबजीन के फायदे में जाता है इनका जो कदम भी ये उठाए। बस मैं ये बात करना चाहता था, बात काफी लंबी हो गई, मैं आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।